السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ انم ذوالفقار۔ میں ہوں آپ کے ساتھ رمشا ساجد۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے بات کریں گے آج ماضی کے مقابلے میں مہنگائی ڈبل ہو گئی ہے، اقتدار میں آ کر سب زیادتیاں ختم کریں گے۔ آصف علی زرداری کا تلنگانہ میں جلسے سے خطاب، کہا کہ ہماری حکومت میں اتنی غربت نہیں تھی، ان کا حکومت چلانے کا انداز ہی غلط تھا۔ مزید کہا پاکستان میں آپ کو کمانے کے موقع دیں گے۔ تو آج بھی مجھے پتا ہے کہ غربت کا کیا عالم ہے۔ جب میں پاور میں تھا اس سے آج غربت ڈبل ہو گئی ہے۔ آپ سے دنیا نے زیادتیاں کی ہیں، وقت نے زیادتیاں کی ہیں، جو لوگوں نے یہاں علاقے کے لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں وہ سب زیادتیاں ختم کریں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جو غریب کی آواز ہوتی ہے وہ ہم پہلے ہی سمجھتے ہیں، پہلے ہی محسوس کرتے ہیں۔ یہی محسوس کرتے ہوئے ہم نے بی بی صاحبہ کے نام سے ایک کارڈ جاری کیا جو عورتوں کو ان کا حق ملتا ہے، غریب عورتوں کو۔ تو یہ حکومت چلانے کا ان کا انداز ہی غلط ہے، اور انشاءاللہ ہم پاکستان میں کمانے کے آپ کو موقع دیں گے۔ بارش سے کراچی جیسی حالت لاہور کی ہوتی تو الیکشن سے دستبردار ہو جاتا۔ مناظرے کی باتیں کرنے والے پہلے کارکردگی کا موازنہ کر لیں۔ کل کراچی کی بارش نے ہمارا موازنہ کر دیا۔ شہباز شریف کی نیوز کانفرنس۔ میرے مہربان کئی ہفتوں سے تکرار سے کہہ رہے ہیں مناظرہ ہونا چاہیے، مناظرہ ہونا چاہیے، اور میں تکرار سے کہہ رہا تھا کہ موازنہ ہونا چاہیے، مناظرہ بھی ہو جائے گا۔ کل موازنہ ہو گیا۔ کل جو کراچی میں ٹھاٹھے مرتبہ سمندر پانی میں جس طرح ایک تباہی کا منظر پیش کر رہا تھا، گاڑیاں پھنسی ہوئی تھی، اب مجھے بتائیں کہ میرے مہربان جو مناظرے کی بات کرتے تھے، میں کہتا تھا کہ مناظرہ ہو جائے گا، موازنہ کر لیں۔ کل موازنہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اگلا الیکشن پاکستان کی قسمت کا فیصلہ کرے گا۔ پیسے بانٹ کر اور شناختی کارڈ وہ رکھے جا رہے ہیں، وہ ووٹ کی بدترین توہین ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جو ہے اس نے جو رپورٹ دی ہے ثابت ہو گیا چور کون ہے۔ لیکن یہ رپورٹ خود پکار کر کہہ رہی ہے کہ 4 سال میں پی ٹی آئی کے زمانے میں کرپشن دوبارہ 140 پہ چلی گئی، کہ 1 کروڑ نوکریاں انہوں نے دینی تھی، 50 لاکھ گھر بنانے تھے، گھر تو دور کی بات ہے، ایک اینٹ نہیں لگائی۔ چینی بیچی گئی مافیا کے ہاتھوں، انہوں نے اربوں روپے اس میں بٹورے، اپنی جیبوں میں ڈالے۔ جس گھر پر پی ٹی آئی کا جھنڈا ہوگا وہ یہودیوں کا دوست ہے۔ الیکشن میں یہودی ایجنٹس کو ملک بدر کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان کا کرک میں جلسے سے خطاب، کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے نوجوان نسل کی اخلاقیات تباہ کر دی، ہم کسی کی غلامی کو تسلیم نہیں کریں گے۔ نون لیگی رہنما رانا ثنا نے کہا ہے کہ نون لیگ ملک کو دوبارہ بحرانوں سے نکالے گی، ملک کو ایسی قیادت کی ضرورت ہے جو سب کو ساتھ لے کر چلے۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ نون لیگ نے مذہبی قیادت اور جماعتوں کا احترام کیا، تمام علماء کرام کے شکر گزار ہیں۔ بدقسمتی سے ایک سازش ہوئی اور اس نمونے کو پاکستان پہ مسلط کر دیا گیا، جس نے اگلے 4 سال میں صرف پاکستان کا تغیر و ترقی خوشحالی کی طرف سفر کو ایک کھوٹا نہیں کیا، بلکہ پاکستان کو دوبارہ بحران کا شکار کر دیا۔ اب پاکستان مسلم لیگ نون میاں نواز شریف کی قیادت میں دوبارہ پاکستان کے ریوائول کے لیے، پاکستانی قوم کی تعمیر و ترقی اور خوشحالی کے لیے برسر میدان ہے، اور ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ قوم اعتماد کرے، ہم انشاءاللہ تعالی دوبارہ پاکستان کو اس بحران سے نکالیں گے۔ میں دوبارہ جو ہے وہ علماء کونسل کے تمام علماء جو یہاں پہ موجود ہیں ان کا بھی، اور جو یہاں پہ موجود نہیں ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ نون لیگی رہنما نے ملک میں بے روزگاری کی وجہ بتا دی، کہا کہ ہمارے ملک میں نوجوان کے پاس ڈگریاں ہیں لیکن نوکریاں نہیں ہیں۔ بے روزگاری کی سب سے بڑی وجہ نوجوانوں کا بے ہنر ہونا ہے۔ خواجہ آصف سیالکوٹ میں جلسے سے خطاب میں بولے کہ میرے پاس اس شہر کی بہتری کے لیے روڈ میپ موجود ہے۔ یہ ایک سینسلیس ایجوکیشن ہے۔ یہاں پہ یونیورسٹیوں کالجوں کی اتنی ضرورت نہیں ہے جتنی یہاں کی ایکسپورٹ انڈسٹری کے ساتھ لنک ہے ٹریننگ سکولز کی ضرورت۔ میں نے ایک پلان بنایا ہے شہباز شریف کی گورنمنٹ میں، اور میں نے حکومت کو دیا ہوا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ امپلیمنٹ ہوگا۔
मेरे हर 6-7 हज़ार या 8 हज़ार बच्ची जो है इस यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। ये तो शिफ्ट हो गया कि यहाँ पे इस कैंपस की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ये ना हो कि असी खाली कराइए तो कोई और कब्जा ग्रुप आ जाए। पीपल्स पार्टी अवाम के लिए लड़ रही है, बाकी कुर्सी की सियासत करते हैं। आसिफा भुट्टो के मुखालिफिन पर लफ्ज़ी वार। पीपी की तरजीह सेहत की सहूलतें हैं। तारीखी सैलाब के बाद बिलावल भुट्टो आवाम के साथ रहे। सैलाब मुतासरीन के लिए सिंध में 20 लाख घर बन रहे हैं। सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गरीब मजलूम और जरूरतमंद के तहफ़्फ़ुज़ को अपना ईमान मानती है। जब तारीखी सैलाब आया, बिलावल भुट्टो ज़रदारी अवाम के साथ खड़े थे। आज सिंध भर में 20 लाख घर बन रहे हैं, और न सिर्फ घर बन रहे हैं, लोगों को मालिकाना हुकूक भी दे रहे हैं। सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लोगों को घर देते हैं, बाकी सियासी जमातों आपसे घर छीनते हैं। सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपकी घर और रोजी रोटी को सोचती है, दूसरे लोग सिर्फ कुर्सी की लालच में सियासत करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके लिए लड़ रही है। तो नून लीगी रहनुमा अता ताड़र ने कहा है कि पीपल्स पार्टी पंजाब में एंट्री करना चाहती है। बिलावल ने शिकस्त से बचने के लिए वोट खरीदे। वोट मेहनत से मिलते हैं, खरीदने से नहीं मिलते। आप लाहौर में तीसरे नंबर के सियासतदान हैं। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब में उन्होंने कहा कि कल देखा कि लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। आवाम का रेला था, हम भी उसके साथ अंदर चले गए, वहाँ वोट खरीदे जा रहे थे। चांद तो इस तरह नहीं मिलता। चांद तो जॉगर पहन के कीचड़ में घुस के अपने लोगों को गले लगा के हर जगह खुद मौजूद होके कैंपेन करने से जो है वो अल्लाह ताला कामयाबी देते हैं। इसका मकसद सिर्फ एक है कि जिदबाजी में लाहौर का इंतखाब कर लिया। गलत फैसला था इनका। वोट बैंक मौजूद नहीं था, तंजीम मौजूद नहीं थी, और बस जिद थी कि जी वो बाई इलेक्शन में हमने कुछ वोट ले लिए थे तो अब भी हम जो है वो वोट हासिल कर लेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये इलेक्शन हार चुके हैं और हमें वाज़े बरतरी हासिल है। उन्होंने घबरा के और एक तारीखी शिकस्त से डरते हुए अल्लाह के फजल से उन्होंने ये काम किया कि मैं अब कतारें लगवा दूं, और वो जो उन्होंने एक टारगेट सेट किया है कि मैंने 50-60 हज़ार वोट जो है वो खरीदना है। तो भाई साहब, खरीदने से तो वोट नहीं मिलते, वोट मेहनत से मिलेंगे, तगोदौ से मिलेंगे। 3 लोगों को हमने पुलिस के हवाले करवाया। वो 3 लोग जो वहां पे ये सारा काम कर रहे थे, ये एक जगह नहीं हुआ, ये 2-3 जगह पे हुआ, जहां पे लंबी लंबी कतारें लगा के तो लोगों से उनकी ईमान खरीदे जा रहे हैं। वोटों की खरीदारी जो है वो जारी और सारी है वहां पे। हम तो इंतजामिया से भी ये रिक्वेस्ट करते हैं, इलेक्शन कमीशन से भी, कि ये कानूनी तौर पे जुर्म है, इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी है। कराची में 1 घंटे की बारिश के बाद तबाही ही तबाही थी। साबित हो गया कि शहर में कराची दुश्मन हुकूमत है। एमक्यूएम के कन्वीनर खालिद महबूब सिद्दीकी की तनकीद, कहा कि शहर मदद को पुकारता रहा। अरबों खरबों के इश्तिहारी मुहिम चलाने वाले कहाँ थे? मुस्तफा कमाल बोले कि इलेक्शन जीतने के बाद इस बल्दियाती निज़ाम का खात्मा करेंगे। ये जाली मैंडेट लेकर हम पर मुसल्लत हैं। कल तो इनके जो पार्टनर रहे खुफिया, जो कह रहे हैं कि हम कराची का हल सिर्फ हम है, वो कल हल के बजाय महलूल बन गए। पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी को ये बारिश धो भी गई है और भिगो भी गई है। कहीं नजर आए आपके लोग? कर लेते ना, हम नहीं थे। जो हम नहीं है और जब नहीं है, तारीख के सफात इसका गवाह रहेंगे कि हम नहीं थे तो कोई नहीं कर सका। जब हम रहे हैं तो कराची संवरा है, बना है, और जितना भी कराची में जो कुछ है वो अदवार में बना है जब एमक्यूएम के पास मैंडेट के साथ इख्तियार भी था। ये प्रूव हो गया कि एमक्यूएम से बेहतर इस शहर को कोई डिलीवर ना कर सका है, ना कर रहा है और ना कर सकेगा। एक दफा ये एमक्यूएम ये मैंडेट ले, हम ये बल्दियाती निजाम का खात्मा करवाएंगे। ये जाली मैंडेट लेकर हम पर मुसल्लत हैं। कराची में गुज़श्ता रात शदीद बारिश हुई। शहर की सूरत हाल पर बातचीत करने के लिए हमारे नुमाइंदे वजाहत अली आबदी मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के साथ मौजूद है। जी वजाहत, बताएगा क्या कहना है मेयर कराची का? आज देखिए, शहर में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी था। कल से महकमा मौसमियात की जानिब से कई रोज से ये पेशेंगोइयाँ की जा रही थी कि शहर के अंदर
2 दिन वक्फे वक्फे बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। कल जो बारिश का सिलसिला शुरू हुआ, आधे घंटे के अंदर 75 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। शहर की जो बेशतर शाराएं थी वो पानी से भर गई थी, जिसके बाद इंतजामिया की जानिब से कोई मुतहरिक तो नजर नहीं आया, मगर बल्दिया उज़्मा कराची के मेयर कराची जो है मुर्तजा वहाब, वो शहर के मुख्तलिफ शाहराओं के ऊपर नजर आए। तो ये बताइएगा बल्दिया उज़्मा कराची की जिम्मेदारी किन सड़कों की है, किन इलाकों की है, और बल्दिया उज़्मा कराची क्या कर रही है? देखिए, वजाहत तनकीद करने वाले तनकीद करते हैं और काम करने वाले काम करते हैं। तो वो जमात इस्लामी वाले, एमकेएम वालों का काम ही तनकीद करना है, मनफी सियासत करना है, वो करते हैं। लेकिन कल जब से ये बारिश का सिलसिला स्टार्ट हुआ, आपने देखा कि मैं खुद ज़ाती तौर पर ग्राउंड पर मौजूद रहा, और बुनियादी टारगेट मेरा यही था कि अगर मैं खुद मौजूद हूँगा तो अफसरान भी जो है वो मुतहर्रिक तरीके से काम करेंगे। के दौर में 2006 की बारिशों में कराची बंद हो गया था, और गालिबन कोई 105 लोग अल्लाह ताला को प्यारे हुए थे। मैं उसकी आपको हेडलाइन शेयर कर लूँगा, जो एक पाकिस्तान के सबसे मुस्तनिद अखबार ने अपने फ्रंट पेज पर चलाई थी। वो शख्स मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जिस शख्स के दौर में इतने पैसे मिले, इतने वसाइल आए, लेकिन आज आपके सामने है कि वो मास ट्रांजिट हो नहीं कर पाए। K4 का फ्लिमजी फ्लॉड मंसूबा उन्होंने बना लिया। ये बेसिकली दहशत की या वहशत की सियासत करते हैं लोग। पिछले दिनों लाहौर में बारिश हुई, आपके सामने है कि लाहौर के इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या हाल हुआ। तो वो शहबाज शरीफ कह रहे हैं ना कि मनाजरा हो गया। मैं कहता हूँ शहबाज साहब आ जाए कराची, मुझसे मनाजरा करें, मेरे चेयरमैन को छोड़ें। मैं बताऊंगा आप लोगों की क्या करतूत है, कि आपने कराची वालों को क्या वादा किया और क्या वादा वफा किया, कि आप पानी के मसाइल के हल करने के लिए क्या वादा करके गए थे। छोड़ दीजिए, मैं वो खतूत दिखाऊंगा आपको जो हमने लिखे हुए इनकी वफाकी हुकूमत को, कि कराची के मसाइल हल करने के लिए आप काम करें। ये शहर इतना टैक्स देता है, तो मनाजरा करना है ना, मेरे साथ कर लें, पता चल जाएगा कि आपने कराची के सनतकारों को कहा था मैं सड़कें बना के दूंगा 4,000 रुपए की, 1 रुपया आपने खर्च नहीं किया, वो सड़कें भी हमने बना के दी। तो मनाजरा मैं करने को तैयार हूँ, मेरे चेयरमैन को छोड़ें, मुझसे कर लें मनाजरा, इनको पता चल जाएगा। दूसरी, दुनिया भर के शहरों की बात देखिए, पता नहीं क्यों हमें खुशी होती है अपने शहर की का मजाक उड़ाने में। न्यूयॉर्क में बारिश हो, दुबई में बारिश हो, लंदन में बारिश हो, आपको नज़र आती है चीज़ें कि ये फर्स्ट वर्ल्ड ममालिक हैं, फर्स्ट वर्ल्ड शहर हैं। वहाँ पे आप देखते हैं सबवे स्टेशन में पानी आ जाता है, आप वहाँ देखते हैं कि सड़कें तालाब का मंजर पेश करती हैं। लाहौर, जिसके पूरा नून लीग की हुकूमत ने वफाक का बजट लगा दिया, उस लाहौर की तस्वीर वीडियोस आपके पास हैं। तो कराची तो वो शहर है जिसके ऊपर वफाक खर्च करने पर बिलीव नहीं करता, बट उसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि हाँ बारिश हुई, ज़्यादा बारिश हुई, लेकिन पानी हमने निकाल के दिखाया, चाहे वो 2020 की बारिश हो, 2022 की बारिश हो, या 2024 की बारिश हो। वजह आप मुझे बताइए, लास्ट टाइम सर्दियों में बारिश कब हुई थी कराची शहर? पिछले साल। हाँ, नहीं इस तरह की बूंदाबांदी ड्रिजलिंग के लिए। तो अगर आधे घंटे में 75 मिलीमीटर बारिश हो रही है और आपके बारिश के सीजन में नहीं हो रही, उसके बावजूद आपके नाले काम करते हैं और पानी को निकाल लिया जाता है, तो कहीं ना कहीं इस बात का तो एतराफ़ करें ना कि काम हो रहा है। अगर शहर में पानी खड़ा होता है और आपका मेयर सुबह के 6 बजे ग्राउंड पर मौजूद है, सड़कों पे लोगों को फराहम कर रहा है कि क्या प्रॉब्लम है और कौन कौन सी जगह क्लियर है, और फिर सुबह उठ के फिर आपको सड़क पर काम करता हुआ नजर आता है, तो कराची वालों ने शायद ये टाइम इससे पहले नहीं देखा था। कराची वालों ने तो वो पूरा वक्त देखा था जहाँ पर कराची वालों को लोग खौफ दिलाते थे, बोरीबंद कार्रवाइयाँ की जाती थी, भत्ते की पर्चियाँ आती थी। तो अब जो कराची तब्दील हो रहा है, ये इन लोगों को पसंद नहीं आ रहा। आज देखें, ये थे मेयर कराची मुर्तजा वहाब, जो कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी हो या मैं हूँ, हम नफरत की सियासत के बजाय मेहनत की सियासत पर यकीन रखते हैं। यही इसका सबूत है कि कल रात से मैं फील्ड में मौजूद हूँ और शहर की 106 शाराएं बिल्कुल क्लियर है, कोई पानी मौजूद नहीं है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में फिर तेज बारिश। सुरजानी, नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाजिबाद, कुरुमंदर, आयशा मंजिल, सदर और क्लिफ्टन समेत दीगर इलाकों में जलथल हो गया। सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। कराची में दूसरे रोज भी तेज बरसात। इंतजामी नाअहली ने बढ़ा दी शहरियों की मुश्किलात। बारिश ने शहर कायद के बेशतर इलाकों को डिबो दिया। मुतादिद फीडर ट्रिप कर गए, सीवरेज का सिस्टम बैठ गया, नशेबी इलाकों में पानी भर गया, मुतादिद सड़कें ज़ेरे आब कई बैठ गयी।
वाटर पंप के करीब शहरी की गाड़ी सड़क में धंस गई। लसबेला से गुरु मंदिर जाने वाली रोड ट्रैफिक के लिए बंद। फवारा चौक से शाहीन कॉम्प्लेक्स तक पानी ही पानी। कयूमाबाद में कई फीट पानी खड़ा हो गया। डालमिया रोड, गुलिस्तान जौहर और नीपा चौरंगी में सड़कें घुटनों डूब गईं। पुलिस स्टेशन गुलबहार में भी पानी जमा। ये रिपोर्टिंग रूम है और माशाल्लाह यहाँ पे जो है ना अभी पानी जो है 2-2 इंच 3-3 इंच पानी खड़ा हुआ है। कौमी इदारा बराए अमराज खानी की नकासी न हो सकी। मरीजों को शदीद मुश्किलात, तिब्बी अमला भी परेशान। मूसलाधार बारिश के बायस हब केनाल में शिगाफ पड़ने से शहर को आर्जी तौर पर पानी की फराहमी मुअत्तल है। मुल्क भर में सर्दी टॉप गियर पर। पारा चनार में हर सू चांदी बिखर गई। वादी नीलम में 3 से 7 फुट तक बर्फबारी से निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम हो गया। शहरी घरों में महसूर हो गए। मलका कोहिसार मरी में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। कश्मीर से किलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान बर्फ से ढक गए घर और चट्टान। खूबसूरत नज़ारों पर सफेदी छा गई। पारा चनार में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी से हर तरफ चांदी बिखर गई। 2 से 3 फुट बर्फ पड़ चुकी। मलका कोहिसार में वक्फे से मोतियों की बरसात। लॉन्ग वीकेंड मनाने के लिए अवाम की बड़ी तादाद ने मरी का रुख कर लिया। इंतजामिया भी हाई अलर्ट हो गई। वादी नीलम में 3 से 7 फुट तक बर्फबारी ने निजाम जिंदगी दरहम बरहम कर दिया। शाहराहों और मवासलात का निजाम भी मुतासिर। लोग घरों में महसूर होकर रह गए। कालाम, मालम जब्बा और शांगला टॉप पर बर्फबारी से शहरियों की मुश्किलात बढ़ गईं। बलूचिस्तान में औरान से सियारत तक बारिश ने जल थल एक कर दिया। बकरान में दरिया सामी में तुगयानी बिरानी डैम भर गया। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर समेत दीगर शहरों में भी वक्फे से बरसात। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला आज भी जारी रहेगा। इलेक्शन कमीशन ने 32 करोड़ रुपए से निजी कंपनी स्पेयर से खुसूसी सॉफ्टवेयर तैयार करवा लिया। अब ना RTS ना RMS इस्तेमाल होगा। इंतखाबात में 2024 में कवायद और नताइज मुरतब करने के लिए इलेक्शन कमीशन इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम में इस्तेमाल कर रहा है। EMS क्या है, ये कैसे काम करेगा, तफसीलात जानते हैं फहाद चौधरी की इस रिपोर्ट। आम इंतखाबात 2024 का खास तरीन पहलू मंजर आम पर आ गया। नताइज मुरतब करने के लिए ना RTS ना ही RMS इस्तेमाल होगा। इलेक्शन कमीशन ने 32 करोड़ रुपए से निजी कंपनी एस्पायर से खसूसी सॉफ्टवेयर तैयार करवा लिया। रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम की अब तक 4 तजर्बाती मशकें हो चुकी हैं। इलेक्शन कमीशन मुतादिद ज़िमनी और बल्दियाती इंतखाबात में भी EMS का आजमाइशी इस्तेमाल कर चुका है। इंतखाबी अमल मुकम्मल होने के बाद फार्म 45 की सूरत में पोलिंग स्टेशन का नतीजा और फार्म 47 की सूरत में हल्के का नतीजा EMS में फीड किया जाएगा। प्रिजाइडिंग अफसरान के मोबाइल पर EMS की ऐप इंस्टॉल की जा चुकी है, जिसके जरिए वो फार्म 45 की तस्वीर ROs को भेजेंगे। रिटर्निंग अफसरान एक मीडिया वाल या बड़ी स्क्रीन के जरिए इन नताइज का ऐलान करेंगे। मुल्क भर से लगभग 3600 डेटा एंट्री ऑपरेटर्स इन नताइज को मरतब करेंगे। हर RO के पास नादरा का एक अहलकार भी होगा जो किसी भी तकनीकी खराबी की सूरत में डेटा ऑपरेटर्स की मदद करेगा। और अभी आपको हम खबर देंगे मखसूस सियासी जमात के शरपसंदों की 4 फरवरी को जलसे की आड़ में कर्क में शरपसंदी। कर्क में जलसे के दौरान सियासी जमात के शरपसंदों की पुलिस के साथ झड़पें। सियासी जमात ने इंतजामिया से जलसे की इजाजत नहीं ली थी। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान अवान, मखसूस सियासी जमात के शरपसंदों ने पुलिस पर धावा बोल दिया, मज़ीद क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल ऐसा ही है। करक का ये वाक़या है और इस हवाले से मजीद अपडेट्स जो सामने आए हैं उसके मुताबिक इस जलसे की कतई इजाजत नहीं ली गई थी। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में जो टेररिज्म का खतरा है, दहशतगर्दी की कार्रवाइयों का खतरा है, बहुत सारी सियासी जमातों को जलसों की इजाजत नहीं दी जा रही और पुलिस या इंतजामिया का यही मौक़िफ़ सामने आता है कि मुकम्मल एक बहुत बड़ा जलसा करने के बजाय कॉर्नर मीटिंग कर ली जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन बहरहाल अगर हम बात करें करक के वाक़े की तो पुलिस के मना करने के बावजूद इस सियासी जमात के कारकुनों ने जलसा करने की कोशिश की और उसके बाद फिर जानबूझकर पुलिस के ऊपर धावा बोला, पुलिस की गाड़ियां तबाह की और पथराव किया, जिससे कई पुलिस एहलकार जख्मी भी हुए हैं। इस वक्त की जो अपडेट्स हैं उसके मुताबिक इलाके में हालात काफी तशवीशनाक हैं, कशीदा हैं और इलाके से मजीद पुलिस की नफरी को तलब कर लिया गया है और पुलिस का मौक़िफ़ यही है कि बिला इश्तियाल उस पर हमला किया गया, बिला इश्तियाल ये पथराव किया गया। हालांकि ये जो इवेंट शरपसंदों ने पुलिस गाड़ियां भी तबाह कर दी और पथराव से मुतादिद पुलिस एहलकारों को जख्मी भी कर दिया। नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। बात करेंगे इसराइली जारियत की। इसराइली फौज के रफा पर हमले, मुख्तलिफ मकानात पर बमबारी से 107 फलस्तीनी शहीद हो गए और 165 जख्मी हुए हैं। हमास के हाथों एक इसराइली फौजी भी हलाक हो गया।
اسرائیل کی غزہ پر کارپیٹ بامبنگ، خان یونس میں ہلال احمر کے ہیڈ کوارٹر پر اسموک بم پھینکے، صہیونی فورسز کی دیر البلاح میں بھی بمباری، غزہ میں جاری اسرائیلی بربریت سے 27,238 سے زائد فلسطینی شہید اور 65,000 سے زائد زخمی ہو چکے۔ تل ابیب میں اسرائیلیوں کا اپنی حکومت کے خلاف بڑا احتجاج ہوا، مظاہرین نے فوری طور پر نئے الیکشن کا مطالبہ کر دیا۔ عراق اور شام میں حملوں کے بعد لبنانی حزب اللہ نے اسرائیل پر 2 گھنٹوں کے دوران 6 حملے کیے۔ غزہ پر قبضے کے منصوبے پر جرمنی کی اسرائیل کو وارننگ مل گئی۔ امریکہ میں اسرائیل کے 17 بلین پیکج کے بل پر کانگریس میں ووٹنگ آئندہ ہفتے ہوگی۔ اور مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی فوج کا ناجائز تسلط ہے، لیکن آج بھی کشمیری اپنی آزادی کے لیے پر امید ہے اور ان کی جدوجہد جاری رہے گی۔ سال گزشتہ میں بھارتی فورسز نے کس طرح کشمیریوں پر ظلم ڈھائے، ایک نظر ڈالتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سال 2023 مقبوضہ کشمیر میں جاری داستان ظلم پر ایک نظر۔ 1 لاکھ سے زائد کشمیریوں کو شہید کیا گیا اور لاکھوں کی تعداد میں کشمیری قید کیے گئے۔ 9 جعلی مقابلوں میں 27 کشمیریوں کو شہید کیا گیا۔ اب تک 23,000 سے زائد خواتین بیوہ اور 1 لاکھ سے زائد بچے یتیم ہوئے۔ فروری 2023 میں جموں کشمیر کی وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کو انسانیت سوز تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ 2 فروری 2023 کو حریت رہنما قاضی یاسر کے گھر اور دکانوں کو مسمار کر دیا گیا۔ 12 اکتوبر کو بھارتی اسکالرشپ اسکیم کا ڈرامہ رچایا گیا، جسے کشمیری طلبہ نے مسترد کر دیا۔ 13 نومبر کو کارگل اور لداخ میں بھارت کے خلاف مظاہرے کیے گئے۔ 11 دسمبر کو سوشل میڈیا پر کشمیر میڈیا کو بھارت کے خلاف تنقید کرنے کو ظلم کا نام دیا گیا۔ 14 دسمبر کو بھارتی سپریم کورٹ نے کشمیر کا تاریخی متعصبانہ فیصلہ سنایا۔ 23 دسمبر کو 3 نہتے کشمیریوں کو پونچھ کے علاقے میں بھارتی فوج کے زیر حراست شہید کر دیا گیا۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے بول نیوز۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔